जय भारत। वेलकम टू डेफ टॉक्स क्लिप्स बाय आदि अचिंत। जैसे ही आपने मेरे बड़े चैनल जो डेफ टॉक्स बाय आदि है उसको आपने जिस तरह से सपोर्ट करा, उसी तरह से ये हमारे क्लिप्स के चैनल को, जहां पर आपको छोटे छोटे अपडेट्स, छोटे छोटे शॉर्ट्स और छोटी छोटी कहानियां मिलेंगी, इसी को भी सपोर्ट जरूर कीजिएगा। लाइक का बटन जरूर दबाइए, सब्सक्राइब तो ऑब्वियसली करिए, बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। एंड हाँ जी, प्लीज अपने दोस्तों के साथ, फैमिलीज के साथ ये वीडियोस जरूर शेयर करिएगा। एंजॉय करिए ये क्लिप को। जय हिंद। फेंस होना चाहिए, जितने जल्दी कर सके करें। जी। मेरे टाइम में भी तकरीबन 2011 12 13 में 11 12 में टूर पकड़ा था कि फेंसिंग के लिए फेंस कर दें, ये वो एंड ऑल। सो वी वर रेडी। रोड बने, किस तरह से रोड बनना है, कैसे कैसे सामान जाएगा टू हेल्प, बिकॉज इट क्वाइट अ लॉट ऑफ प्लेसेस द रोड्स एंड ऑल डोंट एग्जिस्ट जहाँ पे हमारी असम राइफल डिप्लॉय होती है, टफ एरियाज। सो अगर फेंस बनाना है तो यू नीड सम एक्सेस फ्रॉम वेयर द मटेरियल कैन गो। वो तो हमने 2012 में ही बना के भेज चुके थे यार, किस तरह से लेआउट क्या करना। सैट विद असम राइफल्स एंड एवरीबडी एंड वी मेड इट, बिकॉज वो असम राइफल का सेक्टर मेरे नीचे था। सो वी हैव मेड इट एंड सेंट इट। Now finally a decision has been taken, because there is a FMR, free movement regime. 16 kilometers on either side you can go across. All you need is a पर्ची from the local head and you can come across. इसका misuse होता है. China has been misusing this facility for providing aid and everything to the militaries. So once you fence off the border and keep select places, that these are the places where you have to come and the door is open, and then you have a control who's coming, who's not coming. Okay. And if they कि भाई उसके बाद वीजा लेके आना है, क्या करना है, that I don't know, that the home ministry will take a call along with the MEA. But yes, ट्रेड it is परमिट्स या वीजा। yeah, it is a misuse of this free regime, which was giving a free hand to the Chinese to create trouble in the northeast. वो वहां पे जैसे ही प्रेशर आता था, नॉर्थ म्यांमार में भाग के आ जाते थे, ओपन एरिया है, एंड इट इज सच अ thick jungle and a hilly terrain. It's very difficult to guard every inch. You can't. You physically can't. तो भाग जाते थे, इनके कैंप्स होते थे वहां पे. Of course, we had our own people available who would, for us, keep a watch on those camps कि कैंप का ये बढ़ गया, वो बढ़ गया, ये हुआ, वो हुआ, क्या हुआ. And quite a lot of the our people who kept a watch, some of them were priests, by the way. Had a free run inside. वाह। नॉर्थ में भी, नॉर्थ म्यांमार में भी काफी क्रिश्चियंस है. So priest has a free run. He goes into the camp, comes back and tells you क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, कौन कौन आया, कौन नहीं आया. So the linkage to Manipur is based on this, because Manipur was also becoming a hub of drugs. Had also become a hub of drugs. And the background to it is, to my reckoning, is the government had cracked down on the illegal opium poppy cultivation. जी। Right. वो पहाड़ों में कर रहे थे, एंड दैट वाज द वरी. ये यानी मेथी को ये दे रहे, वो दे रहे, विच द हाई कोर्ट हैड मेंशन, दैट्स द स्मोक स्क्रीन. To me, that's a smoke screen. Actual is the curbing of illegal poppy cultivation. There is a legal poppy cultivation also, because poppy is used for making morphine also. It's used for other drugs also, which adds painkillers वगैरह के लिए. It's used in other drugs also. But the illegal poppy is the one which is used for opium and heroin. Illegal poppy से आपका heroin हो जाता है. So that is what has been stopped. And that is what is hurting the people. And
I'm sure it would be hurting the Chinese black market quite a lot. जी And whatever they may say, the Chinese black market is controlled by the PLA and the Communist Party. That is how it survives. वो उनका जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट सिक्योरिटी एंड ऑल दीज पीपल, आई एम श्योर दे वुड बी द वंस आउट देयर हु वुड बी ऑर्गेनाइजिंग एंड कंट्रोलिंग, बिकॉज चाइना में ऐसा कोई जगह नहीं है जहाँ कुछ हो जाए और पॉलिट ब्यूरो को पता नहीं है, सवाल ही नहीं पैदा होता। इनके हथियारों के कितने ब्लैक मार्केट सब तरफ जाते हैं। एक ज़माना था जब सोवियत यूनियन का खूब घूमता था, आज भी है, AK-47, उसका AK-56 आ गया, AK-74 आ गया है। इट्स अ सी, जो कलाशनिकोव वगैरह ये भी कॉपी करके बना रहे हैं, इट्स अ वेरी रगेड, बहुत रगेड हथियार, रोक नहीं पड़ता उसमें, और रगेड यूज के लिए बड़ा आसान है और बड़ा सिंपल है उसको साफ सूफ करके जोड़ के करना। AK-47 में केवल एक खामी है कि जो सेफ्टी कैच है, छोटा सा सेफ्टी कैच होता है, वो पूरा जो इनका राइफल का बोल्ट होता है जिसमें फायरिंग पिन मैकेनिज्म वगैरह होता है, जो आगे जाके एमिनेशन के पीछे उसके फायर को प्रोपेलेंट को हिट करके आग लगाता है, वो हेवी होता है बहुत, ताकि जो प्रेशर बनता है जब प्रोपेलेंट जलता है, अंदर बुलेट ट्रैवल करता है, तो वो प्रेशर को जजब कर ले और पीछे नहीं आए। साथ में ऑफ कोर्स एक स्प्रिंग भी होता है, बट द बोल्ट ग्रुप इज वेरी हैवी। एक छोटा सा पिन उसको रोक के रखता है, तो हथियार अगर गलती से गिर गया तो आपका वो चल जाता है राउंड। तो अब इन्होंने अभी नए वाले जितने आ रहे हैं 56, 74, अभी अपना 203 भी है, उसमें केवल फायरिंग पिन पीछे आता है और ये फायरिंग पिन को रोकता है। तो फायरिंग पिन पतला छोटा होता है तो ये आराम से रोक लेता है, नीचे गिरने पे भी वो गोली चलती नहीं है। तो वैली में जब मैं डिप्लॉयड था, 16 कैवलरी के लिए गया था, उसके पहले मैं नदन कमांड में भी था आर्मी कमांडर के साथ। आई ऑलवेज प्रिफर्ड एन AK-56, AK-47 में रखता नहीं था, क्योंकि जब कई दफ़ा हम तो जनरल अपना पद्मनाभन होते थे, जब पहली इलेक्शंस हुई थी 96 में, तो हम तो या तो मैं चला रहा होता था या वो गाड़ी चला रहे होते थे और कोई नहीं होता था, सिविल ड्रेस में होते थे, अनमार्क्ड गाड़ी, रात को निकल जाओ ड्राइविंग अराउंड सीइंग व्हाट इज द कंडीशन, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, कोई QRT नहीं, कुछ नहीं, साथ 2 AK, 2 AK है और वो है, और वो अपने कार्गो ट्राउजर टाइप होता था, तो वहां पे जो पैंट के साइड में दोनों के पैंट के साइड में जो पॉकेट्स होते थे ना बाहर वाले, उसके अंदर हमारे एक्स्ट्रा मैग्स डली हुई है, के नीचे होता था। अब उसमें गाड़ी में जा रहे हो, दचका लगेगा तो साला भरा हुआ है तो चल जाएगा। ऐसा हुआ था जब मैं ताजिकिस्तान में था। मेरा घर जो था प्रेसिडेंशियल पैलेस के अंदर था, कंपाउंड के अंदर था, उसके तीसरे गेट है, 3 गेट्स थे अंदर जाने के लिए, तीसरे गेट के साथ वहां पे जहाँ पे घर दिया था, वन ऑफ द एक्सटेंडेड फैमिली ऑफ द प्रेसिडेंट का घर था, तो उसने रेंट पे दिया हुआ था, तो वी वर लिविंग देयर। और मैंने एम्बेसी वाले और काफ़ी लोगों को खाने पे, डिनर पे बुलाया हुआ था। एक ताजिक मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस वाले भी आए हुए थे, खाना खा रहे थे, या हाँ लेडीज गई थी खाना खाने के लिए, जेंट्स अभी वेट कर रहे थे जाने के लिए। मुझे AK की आवाज़ आई तुर, तो मैं निकला, तो एम्बेसडर ने पूछा क्या हुआ, मैंने कहा मेरे को लगता है ये आई हर्ड AK का साउंड, आई गोइंग। तो जो MOD वाला था कहता नहीं 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 ऐसे ही कुछ था, आई हैंडल्ड दिस, पर्सनली हैंडल किया है, मेरे को साउंड में भूल नहीं सकता इसका, वैली में भी रहा हूँ, आई डोंट फॉरगेट दिस साउंड। आई वेंट टू द गार्ड, मैंने गार्ड को दरवाजा खोला, मैंने
रशियन में पूछा क्या हुआ, कहता कुछ नहीं, कहा नहीं हथियार चला है, कहता नहीं नहीं नहीं, आई जस्ट लुक्ड अप, उसके फॉल सीलिंग में बुलेट होल्स थे। गार्ड कमांडर भाग के आ गया था, उसने भी सुन लिया था। फुल मार्क्स टू द हेड ऑफ द सिक्योरिटी, ही हैड कम रनिंग। I just looked at him. I told him, "Don't consider me a dolt. What are those bullet holes there for?" हथियार दे। और एक नहीं 5-6 निकली होंगी एक साथ। हथियार पकड़ा। The barrel was warm. Smelt it. Hot. Showed it to the head of the security. He smelt it. Guard सीधे सावधान पे खड़ा हो गया वहां पे। तब तक तो बैठा ऐसी बात कर रहा था, सीधे सावधान हो गया कि यार ये कोई बंदा आ गया जिसको पढ़ा लिखा है, जो समझता है हथियारों के बारे में, चलानी आती है। उसको बोला मैंने, देख मल्टीपल लेयर से यहाँ पे प्रेसिडेंट के घर तक आने के लिए देवर 5 layers ऑफ सिक्योरिटी है, 5 layers बिफोर यू रीच द गेट। Said, why have you loaded your weapon and kept it? Then उसको बोला मैंने कि यार तुमको पता होना चाहिए, जो हेड ऑफ सिक्योरिटी था, मैंने कहा यार लोडेड क्यों है, इसके पास एम्पल टाइम होगा टू नो, बिकॉज गोलियां वोलियां अगर चलेंगी तो चलेंगी, आपको सुनाई देगा यार, ऐसा तो नहीं है कि साइलेंट कोई आएगा। तो तब आप कॉक करो ना, कॉक करके रखे हो, आंख लग गई, हथियार हाथ से गिरा है, तुर चला है। ऐसे शुक्र है ऊपर चला, दाएं बाएं निकल जाता, किसी को चोट लग जाती, फिर क्या करते। So, पैर की उंगली चली जाती सर, lost his foot. these are the weapons these people use. Yeah. Because it is rugged and it comes from China. China बहुत कॉपी करके बनाता है। Russians are angry with them because they copy all these weapons and make. ठीक है, अब वो भी है कि उनका कॉपी कितना चलेगा, that is your lottery. That is your lottery. चल गया चल गया। Absolutely. But Yeah. now he is hurting a lot. कि म्यांमार उसके हाथ से जा रहा है। His biggest worry was Kyapku. Now you look at the problem that he is facing. ये हल्का हल्का सा गैप है ना ऊपर, और जो नीचे एक लॉन्ग स्ट्रैंड जा रहा है अलोंग दी बॉर्डर विद थाईलैंड, ये इसका पाइपलाइन उसके थ्रू जाता है जहां शान लिखा हुआ है, एंड इट इज स्प्रेडिंग। हिज बिगेस्ट कंसर्न इज दिस कि भाई अगर पाइपलाइन उड़ गई मेरी तो यूनान इज अप अ गम ट्री। 20 साल गए। यूनान इज अप अ गम ट्री, बिकॉज यूनान के अंदर ही वॉज मेकिंग वांटिंग टू मेक अ ह्यूज इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स। अब तो खैर वो एवरीथिंग इज अप अ गम ट्री। ईस्टर्न सी बोर्ड से निकाल के यहाँ एक बड़ा बनाने की कोशिश कर रहा था, पानी वानी सब डाइवर्ट करके यहाँ बना रहा था, ताकि दैट वुड सर्व एज द BRI हब फॉर साउथ ईस्ट एशिया and also coming into Myanmar and going into Bangladesh. ठीक है, that was his aim. But अब तो सब कुछ खत्म हो गया, उसका BRI वैसे ही is down the drain. But now Yunnan he is getting worried. So he is the pressure point on India is going. भारत के ऊपर जो प्रेशर पॉइंट था वो। जाने से पहले मैं 1 मिनट के लिए आपको रोक लूं, तो प्लीज ये चैनल को लाइक जरूर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और हाँ, हमारे जो मेन चैनल को जरूर जरूर अपनी फॉलोशिप दीजिए, ताकि हम आपको अच्छे अच्छे पॉडकास्ट, इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स एंड जियोपॉलिटिकल अपडेट से आपके सामने प्रेजेंट करते रहें इसी तरह से। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।